introducing the right actives into your skin, starting first with a salicylic acid, as it will help you to unclog your pores and anyhow your skin will start breathing. So half of the problem solved. Next is niacinamide, which will work on oil control. तो जितना भी oil आपकी skin produce कर रही है वो niacinamide से balanced out हो जाएगा. So one ingredient that you can add is niacinamide. फिर है benzoyl peroxide. It helps to kill acne bacteria जो कि हमें inflammation, redness दे सकता है. जब वो बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो आपको और एक्ने नहीं आएगा. Have you also been struggling for years and cannot seem to find a way on how to treat your acne and clear out your skin? Have you also tried almost everything, every product that is available in the market, be it is DIY, expensive skincare, pharmacy skincare, everything, and still it doesn't seem to work out for your skin? Then this video is for you. I have cracked the code to get that clear, blemish-free, clear skin. And of course, not at all I'm going to gatekeep it. At a point, I started feeling so helpless, even my confidence shattered. So my acne journey started when I was in class 5th. At first, it was just few pimples, but later on, day by day, it got worse. I got painful cystic acne, full of pus, whiteheads, blackheads, redness, skin irritation. Like my full face was covered with pimples. Like when I say I had pimples on full face, with that I mean my hairline, my eyebrows, even there I had those cystic pimples which are very painful. So no matter what I tried, my acne wouldn't just go away. It was like I had a fight with my own skin and I really didn't know how I had to fight it. So I tried almost everything. Drugstore skincare, high-end skincare, home remedies, pharmacy prescribed medicine, but literally nothing worked. My acne was getting more severe and more painful. And log, with that I mean my neighbors, my relatives, वो आके मुझे ज्ञान दिया करते थे कि बेटा ज़्यादा पानी पी लो, बेटा oily food मत खाओ, just keep on washing your face at least 3 times a day. But trust me, my journey was not that simple. At one point of life, I started feeling so insecure, so nervous that I stopped going outside my house. Even standing in balcony was not an option because it was so traumatizing and humiliating for me. And also एक बात में तो मैंने mirror भी देखना छोड़ दिया था because when I saw my face in the mirror, I was like, what is this? And it triggered me more because मुझे पता ही नहीं था इसे मेरे को solve कैसे करना है. तो मैंने एक shortcut अपनाया था which was hiding behind the makeup. So मैं foundation, concealer लगा के अपना face को hide करती थी, blemishes को hide करने की कोशिश करती थी. And at first I thought it is a shortcut, but actually it was a disaster for my skin. And even after coming from school, I didn't used to go out to play with my friends, and even I stopped going to any social gatherings like किसी की शादी, किसी की birthday party, because literally I didn't have that much of courage to go out with a face full of pimples. So आप कह सकते हो कि it was so traumatizing कि मेरे पास मेरी खुद की बचपन की इतनी memories भी नहीं है, because most of the time मेरा जो journey था, मेरा बचपन था, वो मेरे घर में ही निकल गया, because I had no way to solve this. So when I thought of researching, my main aim and focus was to know about the root cause, like understand the problem that actually triggers acne. क्योंकि जब हमें root cause पता होगा तो क्या solution है, क्या steps है, कौन से ingredients है, कौन सी चीजें हमें लगानी चाहिए, कौन सी चीजें avoid करनी चाहिए, वो easily हम understand कर सकते हैं. And with consistency and right process, we can treat acne, जो कि मेरे साथ हुआ. I was able to treat my acne because I started listening to my skin. कि मेरी skin मुझसे क्या बोल रही है, क्या चीज ऐसी है जो मैं कर रही हूँ जो मुझे इतना सीवियर एक्ने हो रहा है. सो विद माई अंडरस्टैंडिंग एंड माई एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स रिसर्च, मैंने ये अंडरस्टैंड किया हमारी जो स्किन है वो एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ स्किन पे पोर्स होते हैं जिससे हमारी स्किन ब्रीथ करती है वो क्लॉग हो जाते हैं, मीन्स बंद हो जाते हैं. तो एनी हाउ जो हमारा स्किन है वो सफोकेट होने लगता है क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. तो अब ऐसा समझो कि अगर मैं आपको एक कन्फाइंड रूम में बंद कर दूं तो आपको कैसा फील होगा. सिमिलर चीज हमारी स्किन भी फील करती है. एंड विद दैट अगर हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं तो हमें रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरियाज, इन सब का भी कंसर्न ऑटोमेटिकली एड ऑन होता है, जो कि ऑफकोर्स हमारा एक्ने ट्रिगर करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, डाइट. यस, डाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आप क्या डाइट, क्या लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, उस पे भी आपकी स्किन कंडीशन मैटर करती है. तो आपको उसके लिए क्या करना है, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट्स, चाहे आप कितना भी एक्सपेंसिव, कितनी भी कंसिस्टेंसी दिखा लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस और ऑन योर स्किन. सो जैसे मैंने कहा था, एक्ने वर्क्स बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली. तो अगर आप कुछ एक्सटर्नली कर रहे हो अपने एक्ने, अपनी पिगमेंटेशन को वर्कआउट करने के लिए, तो आपको अंदर भी कुछ ऐसा करना है ताकि जो भी आपकी बॉडी है वो डिटॉक्स हो सके. तो आप क्या कर सकते हैं, पहला
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप अपने वाटर को एक डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। कैसे? आप एक वाटर बॉटल लीजिए, लाइक 1 लीटर की, उसमें आप चिया सीड्स, क्यूकम्बर, ऑरेंजेस, लेमन, ये सब डाल के कट कट करके डाल के ओवरनाइट छोड़ दो। एंड जब आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे, ड्रिंक दिस वाटर। लाइक जब भी आपको प्यास लगे, ड्रिंक दिस वाटर, 1 सिप 2 सिप, ऐसे करते करते ड्रिंक एटलीस्ट 3 to 4 bottles ऑफ दिस। what it will do, it will start detoxing your body from within. and जब हमारी body within से clean होगी, then of course it will start reflecting on our face too. also sugar, dairy and processed food को limit कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना छोड़ दो, नहीं, आप खाओ, सब कुछ लिमिट में खाओ, लेकिन एनीथिंग एक्सेसिव कैन बी हार्मफुल। तो आपको जो शुगर, डेयरी, प्रोसेस फूड है वो हमारा ट्रिगर करते हैं एक्ने। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, आप जो भी खाना चाहते हो आप सब खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। जब आप ये लाइफस्टाइल अडेप्ट करना लगोगे, देन यू विल सी द डिफरेंस। योर स्किन एक्चुअली स्पीक्स टू यू एंड आपकी स्किन धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगी। एंड ऑल्सो जब आपके पास एक बैलेंस डाइट है, लाइक आप नट्स खाओ, उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्रूट्स खाओ, मखाने खाओ, दीज आर वेरी गुड स्नैक्स एंड वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ये हमें विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब आपकी एक बैलेंस्ड, एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी ना, तो इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन योर स्किन। यू विल ऑल्सो स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल इज फुल ऑफ स्ट्रेस, सो ड्यू टू दैट हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हमें एक्ने हो सकता है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, जिसमें हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजिंग रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट्स एट द रॉन्ग टाइम कैन also trigger acne. Like first of all, if you have active acne या फिर acne नहीं भी है, अल्कोहल बेस्ड स्किन केयर इज समथिंग दैट यू शुड ऑल अवॉइड। सो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हमें सिर्फ पीएम स्किन केयर रूटीन में लगाने चाहिए, जैसे रेटिनॉइल्स, रेटिनॉल या फिर इजाइलिक एसिड हमें कभी भी एम स्किन केयर रूटीन में नहीं लगाने। वेयर एज विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम एम स्किन केयर रूटीन में लगा सकते हैं, बट ऑलवेज फॉलोड अप विद अ सनस्क्रीन, बिकॉज एनी हाउ सनस्क्रीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम पिगमेंटेशन और एनी हार्मफुल डिजीजेस. So yeah, these are some of the factors that you need to take care of. अगर ये आप mistakes अपनी life में कर रहे हैं, then this video is a signal for you that you have to stop it right away. So starting with simplified my skincare routine. For a good skin and a healthy skin, you do not need a 10-step skincare routine. Just focus on 2 to 3 skincare products and you're good to go. पहले तो इट इज वेरी इजी टू फॉलो, आप कभी मिस आउट नहीं करोगे, यू विल बी वेरी कंसिस्टेंट। जब हम कम चीजें जो कि रिक्वायर्ड है फॉर ट्रीटिंग अ स्किन कंसर्न्स, देन यू कैन एक्चुअली सी दोस प्रोडक्ट्स वर्किंग ऑन योर स्किन। अगर आप सारे प्रोडक्ट्स लगा दोगे जो कि आपकी स्किन को रिक्वायर्ड भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हैं और आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है ही नहीं, तो क्या फायदा उस चीज को लगाने का। अगर आपकी पिगमेंटेशन है और विटामिन सी सीरम लगा रहे हैं, देन ऑफकोर्स इट विल बेनिफिट यू। उस केस में अगर आप सैलिसिलिक एसिड लगाएंगे, ऑफकोर्स इट विल नॉट वर्क, बिकॉज वो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए या पिगमेंटेशन को वर्क करने के लिए नहीं यूज होता। सो वट एवर यू आर यूजिंग, यू नीड टू नो कि वो आप क्यों लगा रहे हैं। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट स्किप इट. You do not need to use 10-step skincare routine. Just a cleanser, moisturizer, serum and an SPF is just okay. Second is including the right actives into your skin. Starting first with a salicylic acid, as it will help you to unclog your pores and anyhow your skin will start breathing. So half of the problem solved. Next is niacinamide, which will work on oil control. तो जितना भी oil आपकी skin produce कर रही है वो niacinamide से balanced out हो जाएगा. So one ingredient that you can add is niacinamide. फिर है benzoyl peroxide. It helps to kill acne bacteria जो कि हमें inflammation, redness दे सकता है. जब वो बैक्टीरिया ही नहीं रहेगा तो आपको और एक्ने नहीं आएगा. तो आप जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने जो प्रेजेंट आपकी एक्ने है उसको वर्कआउट, उसको फाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज जब बैक्टीरिया ही नहीं होगा तो आपको मोर एक्ने नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप कौन सा इंग्रेडिएंट किस वे के लिए लगा रहे हैं, किस प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए लगा रहे हैं. एंड जब आप ये समझ जाएंगे, देन यू विल नो हाउ इजी इट विल बिकम टू ट्रीट योर स्किन विद अ पैसेज ऑफ जस्ट 1 month. If you're not having a good sleep or you're not drinking plenty of water, then this is something that you need to work on. और ये आपको, मुझे पता है बहुत लोगों ने आपको बोला होगा, बट मैं ये सब आपको बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ. यू कैन सी my skin right now. I know I have applied makeup, but my skin, my acne, they are gone. थोड़ा थोड़ा मेरे acne scars है, pigmentation है, but pigmentation takes lot of time. So मेरे पिंपल्स तो चले गए हैं, एक्ने मार्क्स हैं जो कि धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम, विद कंसिस्टेंसी चले जाएंगे, बट
मेकअप से तो मैं अपने एक्ने नहीं छुपा सकती, अपने पिंपल्स तो नहीं छुपा सकती. सो यू कैन नॉट सी एनी एक्ने ऑन माई स्किन राइट नाउ, टच वुड. एंड दैट इज बिकॉज जो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ ये फॉलो किया है, मेरे को जो वर्कआउट हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ. आप अगर इसे फॉलो कर लोगे ना एटलीस्ट 1 मंथ के लिए, देन 1 मंथ के बाद आप मेरी वीडियो में आना है, नीचे कॉमेंट करना और बताना कि आपके लिए वो वर्कआउट हुआ कि नहीं. डेफिनेटली आपका आंसर यस होगा. ये गलती हम में से बहुत सारे लोग करते हैं जो कि हमारा एक्ने और सीवियर कर देता है. पहला, से नो टू फिजिकल स्क्रब्स. आपको कोई भी हार्ड चीज अपने फेस पे नहीं लगानी है. उसमें बहुत माइन्यूट ग्रैन्यूल्स होते हैं, जब आप अपनी स्किन पे ऐसे रब करते हैं वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचाते हैं. तो फिजिकल स्क्रब्स नो, कोर्स नॉट. अगर आप उन्हें यूज कर रहे हैं तो अभी फिजिकल स्क्रब्स यूज करना बंद कर दो. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओवर एक्सफोलिएशन. एक्सफोलिएशन आप वंस अ वीक कर सकते हो, वो भी ड्यूरिंग नाइट टाइम. एम स्किन केयर रूटीन में आपको कभी भी एक्सफोलिएशन नहीं करना है, ओवर एक्सफोलिएशन बिल्कुल नहीं करना है. आप जस्ट वंस अ वीक एक्सफोलिएशन कर सकते हो, वो भी सिर्फ अपने पीएम स्किन केयर रूटीन में. एएम में तो बिल्कुल भी मत करना, विल एग्रीगेट एंड मेक योर स्किन कंडीशन मोर वर्स. ड्राइंग टोनर स्पेशली जो कि अल्कोहल बेस्ड हो, नो, you have to stop using it. Instead use hydrating toners जिसमें बहुत अच्छे ingredients हैं, like hyaluronic acid हो, centella asiatica हो. ऐसे ingredients, soothing hydrating toners आपको skin पे use करने हैं. Drying toners, alcohol based toners, no. Last and most important, you have to trust the process. Acne will not go overnight, but by sticking what actually works, I finally saw my skin changing. So आपको consistent रहना है at least 3 to 4 months. आप जो भी कर रहे हो वो करते रहो. इफ इट इज नॉट गिविंग यू मोर पिंपल्स देन डू इट. एंड आफ्टर अ पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर बीइंग कंसिस्टेंट, आपको स्किन केयर करना खुद में ही अच्छा लगने लग जाएगा. एंड देन यू विल फाइनली सी. आप सोचो इतने सालों से आपको पिंपल्स हैं, तो ओवरनाइट या 1 महीने में तो इतने सालों का जो डैमेज हुआ है स्किन पे वो तो रिकवर नहीं हो सकता. तो आपको सोल्यूशन के लिए कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट रहना है. फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months आपको धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपने ये सारी चीजें फॉलो करी या स्किन केयर फॉलो किया और कल ही आपको ग्लोइंग स्किन मिल जाएंगी. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज टाइम कंज्यूमिंग. बट जब वो मैजिक वर्कआउट होता है, योर स्किन विल एक्चुअली थैंक यू लेटर. जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई होप आप मेरे से रिलेट कर पा रही होगी. मेरे पेन, मेरी सिचुएशन, मेरी फीलिंग्स, आई होप everything is mutual. I know how painful it feels when you have tried everything, every product, and still nothing works for your skin. And that was the moment of my life when I stopped being anxious and started researching more on acne, what ingredients to use, the right way, the right process, the right products, everything. अगर आपके कोई भी कंसर्न है, कोई भी सजेशन है, so please feel free to post it in the comment section. I will be happy to read all your queries and reply to them ASAP. So yeah guys, that's all for my today's video. See you in my next one. Till then, bye.